Hello friends, good morning. Welcome to biology class. Yesterday we have learnt about the excretion system in different organisms and even plants also. I'm sure that you have learnt it, you have repeated it from your textbook, and you also have done all the questions which I have asked you yesterday. So today we will continue it, and our today's chapter of excretory system is in human being. How the human beings, that is the man, it excretes, right? So to understand the excretion system in human beings, we can say that it is consists of mainly these following organs. So first you can see here the organs which constitute the excretory system in human beings. They are two kidneys. This is first, है ना? The first is there are two kidneys, there are two ureters, one bladder and urethra. So these are the parts of the excretory system of human beings. So now come to the first part, that is the kidney. Of course they are two in number, ठीक है? And we can say the site where the excretion happens, it is the kidney. The part is the kidney. It is the main excretory system of the human being, right? As I have told you, they are two in number. They are where they are present in the body. Just see at first, right? Here you can see the position of kidneys in the body of a human being, right? So these are two in number. The shape is said to be the bean shaped shape. Bean, have you seen the इसको बीन्स हम एक वेजिटेबल है जिसकी फलियों को हम खाते हैं. यदि उसके अंदर के दानों को आप देखें तो उनका शेप क्या होता है, बीच में कुछ धसा हुआ होता है एंड द ओवल ऑन द in this way, ठीक है? तो this is bean shaped, of course some reddish brown in color structure, and it is located where it is located. The location is very clear on each side of the backbone. It is on each side, on the both. Backbone is the main, this is the this is the backbone, and on the both side of it, it is located in the body of a human being, ठीक है? अब हम देखेंगे कि एक किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है. So for this, and in the body, if we go through a longitudinal section, you can see the position of these kidneys. Here these are the kidneys, and these kidneys, they are from each kidney there is a pipe-like structure. It is the ureters, and these two ureters, they combine into this bladder, and from this bladder the next part is the urethra. This is the last part of that is urethra. So this is what the condition of the excretory organs are seen in the body of a human being, right? Now come to the next, and that is how or what is the structural organization of a kidney. For that we should have a cut. If you cut down the kidney, we can see the internal structure of the kidney. We have a number of slides for this. When you come to the school and we go to your laboratory, we can see this under microscope, and it will be very clear. So each kidney
it is made up of a large number of filtration unit. You know, filtration is the main work in kidney, and these filtration units, they are known as nephrons. What they are called? They are called as the nephrons, and each nephron has a particular structural. What a structural unit is nephron, that we have a clear view here. Okay, so it is a cup shaped, each nephron, it is a cup shaped structure at the upper side. This cup shaped structure you can see very clearly, and it is known, or it is called as Bowman's capsule. What it is called? It is called the Bowman's capsule. This cup shaped structure which is seen here, it is called Bowman's capsule, and the lower end, so each Bowman capsule, it opens in a tubular structure, a very long tube structure. It is called the tubule. It is called the tubule. Yes, you can see it. These tubules, it is connected to a connecting duct and collect the filtrate urine. A number of, you see here, the collecting units are there. It collects the excretory material, and through this it goes to the, it collects all the material which is to be filtrate, So these are the tubules. This is Bowman's capsule. Now next see the Bowman's capsule. There you are just, when you are having a look of this, you can understand, or you can see it, that there is a number of network, some network like structure is seen here, and this contains a bundle of, this is nothing but the blood capillaries. This is nothing but the, sorry, दिस इज ब्लड कैपिलरीज. ऐसा बंडल की तरह इसमें बन जाता है, और ये ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं, इस तरह की जो बंडल बनाती, इनको कहा जाता है ग्लोम्युल्स. क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुल्स. इट इज़ नोन एज ग्लोमेरुल्स. दिस ग्लोमेरुल्स, इसका वन एंड जो है वह होता है रीनल आर्टरी से अटैच होता है. हियर यू कैन सी द renal artery. This black color structure is renal artery. इसका ये जो यहाँ पर क्लस्टर है, it is connected with this renal arteries. और ये renal artery जो है, यह dirty blood जो फिल्ट्रेट होना है, जिस ब्लड को फिल्ट्रेट होना है, जिसमें से कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालना है, दैट डर्टी ब्लड्स कम्स थ्रू दिस रीनल ब्लड, उसके द्वारा, और बोमेंस कैप्सूल की इस ब्लड कैपिलरीज के द्वारा बोमेंस कैप्सूल में पहुंच जाता है. ठीक है. फिर है, और जो अदर एंड है ग्लोमेरुल्स का, इट इज़ कनेक्टेड टू अ ब्लड कैपिलरी विच फाइनली जॉइंस अ वीनल वैन हैविंग क्लीन ब्लड इनटू इट. अब इसका जो दूसरा पार्ट है, इट इज़ कनेक्टेड विद द रीनल वैन, दिस. ठीक है. और यहाँ आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से ये जा करके कनेक्ट हो रही है. तो रीनल वैन में का काम क्या है? रीनल आर्टरी का काम है शरीर का जो ब्लड है, विच वी कैन से द ब्लड विथ वेस्ट प्रोडक्ट्स, उसको ला करके बोमेंस कैप्सूल तक पहुंचाती हैं, और यहाँ से ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं कैपिलरीज, और दिस बोमेंस कैप्सूल में क्लियरिफाई हो करके, और रीनल वैन के द्वारा यह फिर से शरीर को वापस जाता है और आर्गन्स तक पहुंच जाता है. इन दिस वे द किडनी वर्क्स. द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुल्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुल्स. इट इज़ टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट. तो रीनल आर्टरी से ब्लड आया जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ थी. दैट इम्प्योरिटीज़ इज सम दैट इज़ not required in the body. It consists of amino acids and this urea etc. It is filtered here, and the blood is now purified. That purified blood again through this renal vein come back
into the body parts. So glomerulus, जो glomerulus है, glomerulus का क्या काम है कि वह इस blood का purification in the Bowman's capsule उसको करता है. ठीक है. फिर है जो substance during the process, during this process, the substance which are extract out, excretion है, तो it is exude out. exude out कौन कौन से हो सकते हैं? जो कि ब्लड में अधिक ग्लूकोज हो जाता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, देन साल्ट होता है, यूरिया होता है, और वाटर क्वांटिटी भी, जैसे हम बहुत सारा पानी पीते हैं, दैट मच वाटर क्वांटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी. सो दैट क्वांटिटी विच इज not useful for the body, that also it filtered in here in the Bowman's capsule. ठीक है. और इसके बाद में जैसे कि हमने आपको बताया कि यह ट्यूबल्स जो बड़ी यहाँ पर रचना है ट्यूबल्स, और उससे नेफ्रॉन, ट्यूबल्स नेफ्रॉन के ट्यूबल्स में जाती है. सो ईच नेफ्रॉन is the unit of excretion in the human body, and each nephron is consist of the upper portion, that is Bowman's capsule, and the lower in a sort of pipe, that is the we can say the sort of pipe is the tubule. ठीक है. In the tubule some of the useful substance they are again reabsorbed. अब यहाँ से filtered होकर के जब वापस जाते हैं तो उस समय में हो सकता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हो जो कि ठीक तरीके से वोमेंस कैप्सूल में फिल्टर नहीं हुए हैं, वो अगेन उसको रीएब्जॉर्ब करता है ब्लड बाय द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द ट्यूबुल. दिस ट्यूबल्स इट इज़ आल्सो सराउंडेड विद द ब्लड कैपिलरीज. इसकी ब्लड कैपिलरीज उन वांटेड मटेरियल्स को फिर से रीएब्जॉर्ब करती है, और द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड इन द ट्यूबुल इज़ यूरिन. और इस तरह से इस ट्यूबुल में केवल यूरिन, जिसको हम यूरिन कहते हैं, लास्ट द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड इज नथिंग बट द यूरिन. द नेफ्रॉन कैरीज दिस यूरिन. अब ये कहाँ ले जाएंगे दिस यूरिन को? यहाँ पर उसको लेकर के कलेक्टिंग डक्ट, हमने अभी पहले वाले इसमें देखा था कि देर आर 2 कलेक्टिंग डक्ट्स इन द किडनी, जिनको हमने यूरेटर कहा था. तो ये ट्यूबल्स जो हैं वह यूरेटर में ले जा करके यूरिन को पहुंचाती है, और यूरेटर से जो यूरिन है इट पासेस थ्रू द इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, जो एक बड़ा गोल स्ट्रक्चर था, दैट इज़ ब्लैडर. वहाँ जा कर के यूरिन कलेक्ट होती रहती है. और at the time when we feel pressure just to go in the bathroom, at that time it comes out ultimately passed out from the body through urethra. So the bladder is the part where urine can stay at least for a long time. ठीक है. और देन फ्रॉम यूरेथ्रा इट कम्स आउट. सो दिस इज व्हाट द किडनी फंक्शंस, एंड इन द वे वी द ह्यूमन बॉडी इज एबल टू गिव आउट द अननेसेसरी वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी. हमने इसके पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में फीस्ट के बारे में पढ़ा था. सो वॉट एवर वी ईट, दैट इज द यूरिन इज द लिक्विड पार्ट कम्स फ्रॉम ब्लड, है ना. यूरिन इज़ द लिक्विड फ्रॉम पार्ट दैट कम्स फ्रॉम द ब्लड. लेकिन फीस के बारे में हमने पढ़ा था द डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कुछ भी हम खाते हैं, जो कुछ भी हमारा भोजन होता है, इट इज़ डाइजेस्टेड एंड इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द it is absorbed into the blood, and the waste product, there also some waste products are produced. These waste products, they ultimately come to the large intestine. There again they are absorbed if there is some necessary substances for the body. It is again reabsorbed, and from that it comes into the anus, and from anus it goes out in the form of fist out from the body. So there is a difference. It is between the two, the solid waste and the liquid waste. Again second. ठीक है. अब इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे जो कुछ भी अभी आपको मैंने बताया, हाउ द किडनी वर्क्स, और हाउ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज अ नेफ्रॉन, वर्क्स. इसको इस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू कैन clearly understand. Here it is more clear. Just look at this
cup-like structure. It is nothing but the Bowman's capsule, right? And from this in this Bowman capsule, a number of capillaries are there, and this Bowman capsule is it is in the form of a tubule. It is a coiled structure, and these tubules it is connected with the ureter, right? In the form of ureter, and from ureter it comes to urethra. Or the blood vessels, they are also connected here. Very clearly you can see the blood vessels which are connected, right? So the urine which comes out of the body as a waste product, it mainly has water, of course the large quantity of water which is unrequired in the body. There is some salt in it, the nitrogenous substances, waste substances, that is urea, uric acid also is present in this urine. So the urine is constituted with water, the nitrogenous waste product, that is urea, uric acid, and some salts in it. So it is found that on an average, a person produced 1 to 2 liters of urine per day. एक दिन में व्यक्ति के द्वारा लगभग 1 से 2 लीटर तक यूरिन का निर्माण शरीर में होता है, जो शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। अब ये पूरा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। और आपको मैं एक बात बताना यहाँ चाहूँगी कि द फेल्यूर ऑफ दिस सिस्टम इज़ वेरी डेंजरस टू द हेल्थ ऑफ अ पर्सन। आपने बहुत बार सुना होगा कि उनकी डेथ हो गई, वो बहुत बीमार हैं। किस लिए बीमार हैं? द किडनी फेल्यूर, उनका किडनी काम नहीं कर रहा है। ऐसा आपने बहुत बार, हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके बारे में, कभी कभी तो यंगर वंस आल्सो दे आर वेरी मच in the problem with the failure of kidneys. So किडनी जब काम करना बंद कर देती है, जिस तरह से हमने देखा कि नेफ्रॉन के माध्यम से किडनी काम करती है, अगर यह काम करना बंद कर दे तो इसको हम क्या कहेंगे? फेल्यूर ऑफ किडनी। इट इज़ किडनी फेल्यूर। अब किडनी फेल्यूर क्यों हो जाती है? किडनी फेल्यूर होने से क्या, पहले तो ये देखेंगे किडनी फेल्यूर हो गई तो क्या हो गया। किडनी फेल्यूर हो गई तो ब्लड का जो कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो इस सिस्टम के द्वारा शरीर के बाहर आ सकता है, वह आएगा क्या? वो नहीं आएगा। अगर वह नहीं आ रहा है शरीर के बाहर, तो वह कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है? वह शरीर में ही एक्यूमुलेट हो रहा है। और शरीर में कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है? वह ब्लड में ही एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर वह ब्लड में ही एक्यूमुलेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? जो उस शरीर का ब्लड पूरी तरह इम्प्योरिटीज से, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज़ नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, वो उससे भर जाएगा। दैट मीन्स जो प्योर ब्लड है वह बहुत इम्प्योर ब्लड में बदल जाएगा, और ब्लड की जो फंक्शनिंग है टू गिव द स्ट्रेंथ, टू गिव द एनर्जी, वो सब खत्म हो जाएगी। और दूसरा एक आपने और देखा कि जो अनवांटेड अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि हमारे शरीर में हम पीते हैं, हमारे पास में जमा होता है शरीर में, वो अनवांटेड वाटर भी किडनी फेल्यूर के कारण शरीर से बाहर नहीं जाता है। और इस तरह से जो वाटर शरीर में जम जाता है, रह जाता है, वह शरीर को समाप्त करता है, सड़ा सकता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है शरीर में पूरी तरह से, और इस तरह से मनुष्य किसी भी काम का नहीं बचता, चलना फिरना भी उसका मुश्किल हो सकता है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि फेल्यूर ऑफ किडनी जो है वह कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और ये बहुत ही कॉमन फैक्टर है, एक बहुत कॉमन डिजीज़ है, स्पेशली व्हेन द एज, जब बहुत ज़्यादा एज हो जाती है तब की ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस समय में शरीर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो चलना फिरना कूदना घूमना, वो बहुत कम हो जाता है। ड्यू टू दैट आल्सो इट हैपन्स। और क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनके कारण किडनी फेल हो सकती है? सो द stopping, we can say that the working stop of kidney is kidney failure. Very simple है ना, किडनी फेल्यूर है और सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स उसमें जमा हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा। लेकिन ये और किन कारणों से होता है? तो सबसे पहले तो कुछ इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं।
किडनी को पर किसी तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जो कि किडनी के नेफ्रिडियाज जो हैं या नेफ्रॉन्स जो हैं इन पर अटैक करके इनकी वर्किंग को स्टॉप कर सकते हैं। और या तो फिर कभी किडनी में किसी प्रकार की कोई इंजरीज हो जाती है, किन्हीं कारणों से किडनी के अंदर अगर इंजरीज हो जाएंगी तो भी उसके नेफ्रॉन्स जो हैं वो इंजोर्ड हो जाएंगे और दे आर नॉट इन गुड वर्किंग ऑफ कोर्स। फिर एक तरीका और हो सकता है, ये हमने देखा है कि नाउ डेज देयर इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? द फ्लो ऑफ ब्लड, जो ब्लड का फ्लो होता है वह फ्लो उस प्रेशर से नहीं चलता जिस प्रेशर से एक्चुअली इन हेल्दी बॉडी जिसमें चलना चाहिए उसमें फ्लक्चुएशन होता है। दैट फ्लक्चुएशन आल्सो वर्क्स ऑन द वर्किंग ऑफ किडनी, दैट इज़ ऑन द नेफ्रॉन्स। या फिर बहुत हाई ब्लड शुगर हो जाती है। ब्लड शुगर का मतलब ब्लड में शुगर की मात्रा एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है अलग जगह पर, और शुगर की मात्रा ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो दीज आर द मेन 4 रीजन्स बाय विच द किडनी फेल्यूर इज़ वेरी कॉमन। द फर्स्ट इज़ इन्फेक्शन इन द किडनी, द सेकेंड इज़ इंजुरीज इन द किडनी, द थर्ड इज़ हाई ब्लड प्रेशर, एंड द फोर्थ इज़ high blood sugar. Due to this it may happens in the human body. ठीक है, क्योंकि यह ब्लड का जो फ्लो है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, और आपने देखा कि अगर हम उसका वर्किंग सही नहीं होगा किडनी का तो इट इज़ ऑल चेंज इनटू द इम्प्योर ब्लड विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अगर ऐसा है तो इससे बचा कैसे जा सकता है? हम किडनी फेल्यूर से कैसे बाहर आ सकते हैं? सो अगर टोटल किडनी फेल्यूर है टोटल, तो देयर इज़ नो वे जस्ट टू गेट अनदर किडनी। अगर किडनी काम ही नहीं कर रही है तो उसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एक दूसरी किडनी को शरीर में इनपुट किया जाए, और इसको कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी। क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी। और ये ट्रांसप्लांटेशन एक बड़े ऑपरेशन के द्वारा होता है तब जबकि कोई व्यक्ति अपनी किडनी देने के लिए तैयार हो जाए जो कि उस व्यक्ति के बॉडी के लिए सूटेबल हो। उस व्यक्ति के जिसकी किडनी खराब हो गई है या पूरी वर्किंग बंद कर चुकी है, जिसको हम कहेंगे किडनी इज फेल्ड, फॉर दैट बॉडी ऑफ अ सूटेबल किडनी of another person is given then only it is transplanted। इसलिए आपने देखा होगा in most of the cases कि अगर हमारे परिवार में किसी का किडनी फेल्यूर होता है तो परिवार का ही कोई व्यक्ति उसको किडनी देता है। परिवार की किसी व्यक्ति से उसको एक किडनी दे दी जाती है, जिसके कारण उसका वर्किंग जो है वह नॉर्मल हो सकता है। यह दूसरा एक तरीका और अभी हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डेवलप किया है, एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन यूज़ नाउ डेज, एंड दैट इज़ द डायलिसिस प्रोसेस। क्या है ये? डायलिसिस प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, अगर किडनी फेल्यूर है तो क्लीनिंग, ब्लड क्लीनिंग करना पड़ेगा। किडनी का क्या काम है? मेनली किडनी का काम है कि उसकी ब्लड को क्लीन करते चला जाए। तो इसको ब्लड क्लीनिंग के लिए एक आर्टिफिशियल सिस्टम तैयार किया जाता है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऐसे तैयार होता है कि उसके द्वारा जो खराब जो ब्लड है, जो कंटेमिनेटेड ब्लड है, उसको प्योर ब्लड में बदला जाता है। और इस सिस्टम को या इस प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है। और जो सिस्टम बनता है, जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को हम अब आगे देखेंगे कि वह किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, ऐसा तभी होता है जबकि किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होती। बहुत से कारण हो सकते हैं कि सूटेबल किडनी ना मिले, है ना, तो उस समय में डायलिसिस पर डिपेंड किया जाता है। और लेकिन ये डायलिसिस रेगुलर करना होता है। देयर इज़ it is frequently it is to be done once in a week or twice a week or thrice a week। और ये उस पर डिपेंड करता है कि मरीज़ किस पोजीशन में है, उसका बॉडी किस पोजीशन है। इफ़ द प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड alternate days, it is given alternately। if it is required once only in a week, then it is as may be the case। ठीक है, अब डायलिसिस के प्रोसेस में क्या होता है, और इसलिए इस डायलिसिस के प्रोसेस को आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। डायलिसिस का जो स्ट्रक्चर होता है, डायलिसिस मशीन, डायलिसिस
करने के लिए एक विशेष प्रकार की मशीन बनाई जाती है. इट इज़ नोन एज डायलिसिस मशीन, एंड दिस मशीन कैन बी सेड एज आर्टिफिशियल किडनी, क्योंकि यह वही काम कर रही है जो कि हमारे शरीर में नेचुरली किडनी करती है. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी. ठीक है. अब यह मशीन क्या होती है, आप यहाँ फिगर में देखिए. मशीन इज़ नथिंग बट इसमें एक पॉट होता है. उस पॉट में पूरा ब्लड रखा जाता है. ब्लड में उसी परसेंटेज में जो ब्लड के मेन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको रखा जाता है. और वो आप जानते हैं क्या हो सकती हैं. वो वाटर हो सकता है, वो ग्लूकोज होता है और साल्ट होता है, पर उसमें उसका कंसंट्रेशन इज एज सिमिलर एज द नॉर्मल ब्लड. सो इन दिस what dotted is seen is nothing but the blood. It is with the same concentration of the substance which is present in the blood. और जिस व्यक्ति को डायलिसिस करना होता है उस व्यक्ति के डायलिसिस उसकी आर्टरी में डायलिसिस की जो मशीन है इसकी निडल डाली जाती है और इसको एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है. डायलिसिस मशीन में क्या है, इट इज़ टोटली, यू कैन सी हियर, इट इज़ ओनली अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ semi-permeable membrane which is mainly the cellulose as we have in our body. So इसमें से आर्टरी से जो इम्प्योर ब्लड है वह निकाल लिया जाता है और इस ट्यूबल्स के थ्रू वह इस पूरे जो हमारा पॉट है इसमें आता है, जो मशीन है इसके अंदर आता है और इसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है. जो इसमें रफ चीज़ें हैं, जो कि अनवांटेड चीज़ें हैं, वो इसमें से निकालते हैं. वांटेड चीज़ें इसमें से एब्जॉर्ब की जाती हैं. और एक दूसरा जो वेन्स है, इस वेन में जो प्योर ब्लड है, यू आर सीइंग हियर द प्योर ब्लड, इट इज़ ड्रॉप्ड into the vein from where it runs in the whole body of the patient. राइट. तो इस तरीके से डायलिसिस के माध्यम से हम पेशेंट को स्वस्थ रख सकते हैं या जीवित रख सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम in the human body. I think it is very clear to you now. Very simple also, just to understand. And on the basis of what I have told you today, on the basis of that, I'm going to give you some questions which you have to write the answers. One thing I just want to tell you, if you have any problem in writing the answer to this, one thing is important, you have to write the answers in your own words. Right? And second thing is, if you have any of the problem, just to write the answer, you can concern with me and you can ask me. You can have my number from Monica madam, okay? Or you can come to school as it is told you and you can show me your copy, and if you need any of the explanation that I will be always ready just to give you, okay? So our first question is, describe the mechanism of urine formation in human excretory system. So how the urine is formed in the body, that you have to describe. Where is urine carried through ureters? From ureter to what part, which part it was taken? Then what is urethra? What type of patients are put on dialysis? To which person, which patient we are using dialysis process, that you have to explain. Then explain the principle of dialysis with the help of label diagram that I have shown you. You may have in your book also. Now there is a question related with in two parts, that is assertion and reason. As I am now writing the all four steps, that is very common. So you have given this question. One is assertion is, the assertion is the main organ of human excretory system is kidney. The main organ of human excretion system is kidney, and the reason given is to kidney performs the function of removing excess water and nitrogenous waste from the body. That means, in short, you have to explain the work of kidney and
justifying whether the assertion and reason are correct, whether any one part is wrong, whether the reason is not clarifying the assertion. Okay, so please do it and complete your work. So goodbye.